Hello everyone, welcome to Bharati UPSC. So today we are going to cover the most important MCQs from the 11th class NCERT of Polity. So this is the book and this is the index. तो हम chapter wise MCQ करेंगे, very important. So let's start. Number 1. Consider the following statements about the Constitution. Number 1. Constitution ensures that good people come to power. Constitution is the locus of people's hopes and aspiration. Constitution gives its citizen only a political identity. So which of the above are correct? So we read the statements again. So if you see here, it is the word only. So Constitution सिर्फ हमें political identity नहीं देता, it also give moral identity. तो the answer will be C. The answer will be C. 2 only. कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर नहीं हो. कॉन्स्टिट्यूशन तो डिसाइड नहीं करेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक प्रोसीजर लेट डाउन कर सकता है. अब गुड पीपल आए या बैड पीपल आए इसके थ्रू, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर नहीं करता. सो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कैन नॉट इंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर एंड इट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स मोरल आइडेंटिटी, नॉट ओनली पोलिटिकल आइडेंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेटअप अंडर. गेस व्हाट वुड द आंसर? The answer is yes, B. Cabinet Mission Plan. So the Cabinet Mission Plan of 1946 to India aimed to discuss the plan for the transfer of power from British government to Indian leadership, providing India with independence. So this plan was formulated at the initiative of Clement Attlee, who was the Prime Minister of United Kingdom at that time, and members were Lord Patrick Lawrence, Secretary of State for India, and Sir Stanford Crisper was the president of Cabinet Mission Plan. So question number 3. The Constitution of India was drafted and enacted in which language? Very easy question. The answer is yes, English. Fourth question. Which Indian artist decorated the handwritten copy of the Constitution? This is very important MCQ from the NCERT. तो कौन सा आर्टिस्ट था? The answer is yes, D. Nandlal Bose. He was pioneers of modern Indian art and a key figure of contextual modernism. He was a student of Rabindranath Tagore, and Bose was also known for his Indian style of painting. Next. The Indian Constitution Assembly after the partition had the following number. Answer is yes, B. 299. So पार्टीशन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो 299 रह गई थी और ओरिजिनल कितनी थी? द ओरिजिनल वॉज 389. 389 वॉज ओरिजिनल. नेक्स्ट. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन. कब मूव होता? द आंसर इज ए. On 13 December 1946, moved by Pandit Jawaharlal Nehru. तो what was objective resolution? Basically objective resolution बाद में जाके preamble की फॉर्म में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ. So the Constitutional Assembly declared its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution. Basically it was a preface. Next question. In the final form of constitution adopted by the Constitution Assembly, how many articles and schedules were there? Very easy question, class 6 question, पर फिर भी कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आंसर इज यस, डी. 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स. और फर्स्ट शेड्यूल कब ऐड हुआ था? यस, दिस इज अ क्वेश्चन. कमेंट योर आंसर. The original constitution had 8 schedules. 9th शेड्यूल कब ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? सारे आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन. द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम. तो कहाँ से लिया गया है रूल ऑफ लॉ? यूएसए, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन. यस, द आंसर इज ब्रिटेन. So the concept of rule of law further requires that
नो पर्सन शुड बी सब्जेक्टेड टू harsh or arbitrary treatment. The word law in the rule of law means that whether he is a man or a society, he must not govern by a man or a ruler. So basically to remove the arbitrariness को हटाने के लिए है कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ, और वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया हमारे ब्रिटेन से. सो चैप्टर टू इज ऑन राइट्स. सो द क्वेश्चन इज इन इलेक्शन वेर यू आर एन एलिजिबल वोटर, आप एलिजिबल वोटर तो हो पर आपका जो राइट टू वोट है वो इन्फ्रिंज हो जाए, देन व्हाट रेमेडी डू यू हैव? तो आप क्या करेंगे? क्या रेमेडी है? आंसर द क्वेश्चन फास्ट. तो आप क्या करेंगे? फाइल ए नॉन जुडिशियल पिटिशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, फाइल ए केस अगेंस्ट द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, या मूव द हाई कोर्ट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू वोट जो है क्या वो फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकते डायरेक्ट. सुप्रीम कोर्ट तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं जब फंडामेंटल राइट हमारा वॉलेट हुआ हो. तो आंसर वुड बी डी. यू कैन मूव टू हाई कोर्ट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट विच इज राइट टू वोट. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the answer. Right to vote is not a fundamental right, so Supreme Court, you cannot go Supreme Court directly. Next question. Consider the following fundamental rights. So these are the fundamental rights: right against discrimination, right to conserve one culture, right to life and liberty, right to freedom of speech and expression. अब वो कह रहा है कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं पर फॉरेनर सिटीजन्स को नहीं. तो कौन से हैं? तो आंसर वुड बी सी 1, 2 and 4. 1 मतलब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, राइट टू कंजर्व वंस ओन कल्चर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ये हर किसी को अवेलेबल है. जो भी इंडियन सॉइल या इंडियन लैंड पर आकर रह रहा है उसको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अवेलेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग institution have the authority to expand and increase the scope of fundamental rights of constitution. fundamental rights जो है हमारे constitution में उसका scope कौन increase या decrease कर सकता है? president, supreme court, high courts और parliament. So guess the answer. The answer would be C. Yes, 2, 3 and 4. President has no business in this regard. Supreme Court, High Court and Parliament can alter the scope of fundamental rights. Next question. Consider the following statements about the fundamental rights. So, the law enforcing fundamental rights can be made only by a parliament and not by the state legislature. Both the parliament and state can curtail or repeal the fundamental rights. This is a very tricky and good question in the NCERT. Now the another trick is you have to find which are not correct. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? आंसर वुड बी बी, which is that state can curtail or repeal the, no, the state cannot curtail or repeal the fundamental rights. Only the parliament has the power to repeal or curtail the fundamental rights. So here it is. Next question is which of the following about a law placed under 9th schedule विच इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ ट्रू. कि 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ चला जाए तो उसका रिलेशन फंडामेंटल राइट से क्या रहेगा? व्हाट इज़ द ट्रू इन दिस स्टेटमेंट्स? दैट इट कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. क्या उस लॉ को किसी भी, क्या वो लॉ जुडिशियल रिव्यू के अंडर अवेलेबल नहीं है? कैन बी क्वेश्चन इन हाई कोर्ट ओनली. सम लॉज कैन बी क्वेश्चन इन बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, या नन ऑफ द अबव. तो आंसर वुड बी सी. यस, सम लॉज कैन बी क्वेश्चन इन बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो ओनली यहाँ पे ओनली था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया. क्या वो क्वेश्चन नहीं किया जाता? ये तो ऑलरेडी आर्बिट्री स्टेटमेंट है. तो आंसर वुड बी सी. नेक्स्ट चैप्टर 3 इलेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसमें से कौन सी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो
कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, जिसके आर्टिकल्स अवेलेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. फॉर एग्जाम्पल, देर आर द बॉडीज विच आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सो कंसिडर्ड एज मोर पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324. फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? 280. और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका आर्टिकल क्या है? 338. नेक्स्ट, एज्यूम दैट यू आर द फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है जी, एंड हैव बीन आस्क्ड टू सजेस्ट एन इलेक्टोरल सिस्टम फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया. आप इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन हो और आपसे पूछा गया है कि आप एक सजेशन दो जो इस इलेक्टोरल सिस्टम को सूट करे. दिस नंबर 1 इज दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन वोट्स एंड सीट्स फॉर द डिफरेंट पार्टीज, एंड वी हैव स्मॉल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज who are spread all over the country, so we should ensure fair representation. तो 2 कंडीशन होनी चाहिए. पहली कंडीशन कि भाई कोई भी पार्टी को वोट्स और सीट की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, और जो माइनॉरिटी है उसको फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. तो इसमें से कौन सा ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम है जो अवेलेबल है? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, रेफरेंडम, या नन ऑफ द अबव. तो आंसर वुड बी ए, यस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. अब ये सिस्टम क्या होता है? इट सीक्स टू क्रिएट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दैट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सपोर्ट फॉर ईच पॉलिटिकल पार्टी, वेयर मेजोरिटी और प्लुरैलिटी सिस्टम इफेक्टिवली रिवॉर्ड स्ट्रॉन्ग पार्टीज एंड penalize weak ones by providing the representation of a whole constituency to a single candidate. Next question. With reference to delimitation commission, consider the following statement. delimitation commission क्या होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को तय करती हैं जब इलेक्शंस होते हैं. The orders of delimitation commission cannot be challenged in court of law. When the orders of delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly, they cannot effect any modification in orders. Which statements are correct? Correct here would be C. Both are correct. The orders of delimitation cannot be challenged in any court. This is a so powerful commission कि उसके जो orders होंगे वो आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और कोई भी मॉडिफिकेशन भी नहीं होगी इनके ऑर्डर्स में. Which of the following would determine the effectiveness of constitution? अब इसका ये जो डिटेल PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसमें जाके आप डिटेल इसके सॉल्यूशंस पढ़ सकते हैं. वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं स्किप करता जा रहा हूँ. डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा. तो कौन सा ऐसा है जो इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है? पीपल हु एनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सबटेंटिव प्रोविजंस, सिंगल इंस्टीट्यूशन विद मोनोपोली ऑफ पावर. तो क्या ऐसा इन तीनों में से जो कॉन्स्टिट्यूशन की इफेक्टिवनेस को डिटरमिन करेगा? द आंसर वुड बी सी, 1 and 2. People, yes, people, it is people who are empowered by the constitution. And second is substantive provision. A single institution with monopoly? Absolutely not. So you can read from here the detail through PDF. मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा और लिंक नीचे कमेंट में शेयर कर दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन? क्या काम इलेक्शन कमीशन का नहीं होता? नॉट द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन. फर्स्ट, टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. सीम्स ट्रू. अप्रूवल ऑफ सेटिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. सीम्स ट्रू. Deciding the disqualification of member of parliament by using his discretion power, or advising the governor on matters of related to disqualification of members of legislative council. NCERT से क्वेश्चन है पर लेवल देखो क्वेश्चंस का. आंसर वुड बी सी, डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय यूजिंग हिज डिस्क्रिप्शन. ये स्टेटमेंट कौन डिफाइन करते हैं? ये पावर है स्पीकर की. स्पीकर डिसाइड करता है. इलेक्शन कमीशन में इसका कोई रोल नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के. सॉरी, द इलेक्शन कमीशन शैल सीक द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इन डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो प्रेसिडेंट की परमिशन
लेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? इट इज़ ए परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी. It is responsible for getting conduct the elections of president, vice president and municipal corporation. So municipal corporation की जो elections है वो state election commission करवाती है. तो ये statement गलत हो गई. तो B is the answer. B. बाकी की स्टेटमेंट अगर हम देखें 324 yes आर्टिकल है एंड दिस इज ऑल इंडिया yes इलेक्शन कमीशन इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन और परमानेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है. नेक्स्ट चैप्टर्स आर 4, 5, 6 एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. Which of the following are correct regarding parliamentary system? It is a government of experts. It is an unstable government. It is against the separation of powers. It can lead to despotism. Or it is a responsible government. तो क्या है parliamentary system के features? The answer would be B. Yes. 2, 3 and 5. It is an unstable government. Yes. कभी भी no confidence motion अगर पार्लियामेंट में पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है. It is against the separation of powers and it is responsible government. Yes, responsible because there are many checks and balances in parliament. So if you see the merits of parliamentary system and demerits of parliamentary system. So number 1 merit is harmony between the legislature and executive बनी रहती है. executive कौन सी होती है? जिसको हम सरकार कहते हैं. जो सरकार हम चुनते हैं वो एग्जीक्यूटिव होती है. और लेजिस्लेटर क्या होता है? बेसिकली पूरा पार्लियामेंट जो होता है वो लेजिस्लेचर बोलते हैं उसको. तो एक पार्लियामेंट सिस्टम में एक हार्मनी क्रिएट हुई हुई है. सेकंड, इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस डिवाइसेस जैसे क्वेश्चन आर, एडजर्नमेंट मोशन, डिस्कशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. सेकंड, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेस्पोटिज्म नहीं होने देती. और रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रेजेंट है. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी गवर्नमेंट के खिलाफ पास हो जाए तो जो अपोजिशन है प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है. डिमेरिट्स क्या हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के? अनस्टेबल है, देयर इज़ नो गारंटी एंड गवर्नमेंट कैन सर्वाइव, और नो कॉन्टीन्यूटी नहीं है पॉलिसीज़ में. फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद अगर कोई और सरकार आ गई तो ज़रूरी नहीं है कि वो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द फाउंडिंग फादर्स प्रेफर्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री. अब एज यू ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया. तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, क्या कारण थे? नंबर 1 इज़ कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, सेपरेशन ऑफ पावर आ जाए, हेट्रोजीनियस इंडियन सोसाइटी. तो क्या कारण थे? तो A 1, 2 and 4 कि सिस्टम बना रहे, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और हेट्रोजीनियस इंडियन सोसाइटी के लिए ये सूटेबल था. सेपरेशन ऑफ पावर इसमें नहीं आएगा. द फाउंडिंग फादर प्रेफर्ड ब्रिटिश बिकॉज देयर इज़ फैमिलियरिटी विद सिस्टम. फैमिलियरिटी थी, ऑलरेडी 20-25 साल उनको हो गए थे उस सिस्टम में काम करते हुए, तो उनके लिए भी फैमिलियरिटी थी और नॉर्मल सिटीजन्स थे जो इंडिया के उनके लिए भी फैमिलियरिटी थी. क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम हैड बीन इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. देन आफ्टर दिस एक्सपीरियंस इट वाज क्वेश्चनड व्हाई वी शुड गो बैक, कि जब पता है और नया एक्सपीरियंस क्यों लें, बिकॉज इंडिया एक नई कंट्री बनने जा रहा था, इसलिए उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड जो फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म का वो सीधा अडॉप्ट कर लिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन अलाउ ओनली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू बी द अपॉइंटेड एज मिनिस्टर. बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन कैन हैव PM फ्रॉम लोअर और अपर हाउस. सो व्हाट वुड बी द आंसर? द आंसर वुड बी, कौन सा इसमें से ट्रू है? दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि इंडिया में आप मिनिस्टर हो सकते हो. Here, the member of parliament alone are appointed as minister in Britain only. पर in India, a person who is not a member of parliament नहीं है जो, उसको भी मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, बट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. 6 months के अंदर आपको MP बनना पड़ेगा, पर उससे पहले आप 6 months के लिए मिनिस्टर आपको गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है. एंड सेकेंड इज इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउस. चाहे राज्यसभा, कौन से 2 हाउस हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा. आप इसके ही मेंबर हो सकते हो, इसके भी हो सकते हो, पर ब्रिटेन में यू हैव टू बी मेंबर ऑफ ओनली लोअर हाउस विच इज़ हाउस ऑफ कॉमन्स. तो इंडिया में ऐसे कौन से एक एग्जांपल्स रहे हैं जो अपना अपर हाउस से प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं? तो पहला एग्जांपल है इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह. ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे राज्यसभा के मेंबर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the features of on the basis of which the parliamentary system of government India operates?
कौन सा फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का जिसपे हमारा सिस्टम है जो पार्लियामेंट्री का वो ऑपरेट करता है? नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, प्राइम मिनिस्टर इज अ रियल एग्जीक्यूटिव, और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर वुड बी, सारी स्टेटमेंट सही लग रही है तो यस, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही फीचर हमारे हैं इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम में। हमारे नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव भी है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल भी है लोअर हाउस को, और प्राइम मिनिस्टर बेसिकली रियल एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? According to 42nd and 44th Amendment, it is compulsory for President to comply with the advice of Council of Ministers. Presidential system is based on double executive. According to the Article 74, Council of Ministers work under the leadership of Prime Minister. In Article 74-75 provide the parliamentary system in the center. तो कौन सा इसमें से गलत है? थिंक द आंसर वुड बी बी, यस। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो सिंगल एग्जीक्यूटिव पे बेस होता है, डबल पे नहीं। बाकी सब करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो यहाँ पे आएगा हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इट इज़ हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। कौन कौन पार्ट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और द मेंबर्स ऑफ ऑल यूटीज। तो आंसर वुड बी यस, ए। इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्ट नहीं करते, जबकि वो जब इम्पीचमेंट होती है प्रेसिडेंट की तब नॉमिनल मेंबर्स पार्ट लेते हैं, पर इलेक्शन के टाइम में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल. The President of India is not a member of either house of the Parliament. Yes, the Parliament is a legislative organ of the Union government. Select the correct answer. तो correct answer would be yes, D. All statements are correct. Parliament के 3 parts होते हैं, एक lower house which is Lok Sabha, upper house which is Rajya Sabha, and President. President is also a part of Parliament, but it is not the member of either house of the Parliament. Next question. ज़ीरो आवर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम। ज़ीरो आवर एक डिवाइस है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ये कहाँ से हमने ड्राइव किया है? साउथ अफ्रीका, अमेरिका, जापान, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर वुड बी डी। तो ये हमने किसी भी कंट्री से बोरो नहीं किया। 9th लोकसभा स्पीकर राबी रे इंट्रोड्यूस्ड सर्टन चेंजेस इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर टू रेज द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिकल इंपॉर्टेंस, और वहीं से इन्वेंट हुआ ज़ीरो आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा में, लोकसभा में, या दोनों में, या कहीं भी नहीं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। इस पूरी MCQ की सीरीज़ की मैं जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। वहाँ से जाकर डिटेल इसके जो सॉल्यूशंस है वो पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस को हाईलाइट करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। नेक्स्ट, हु डिसाइड वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फाइनेंस मिनिस्टर? तो आंसर इज यस, सी, स्पीकर। वट आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन ए क्वेश्चन आवर? ज़ीरो आवर के बाद आता है क्वेश्चन आवर, और क्वेश्चन आवर में पूछ रहा है कि कौन से 3 तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तो आंसर वुड बी यस, ए, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल सोल्यूशन आप PDF से पढ़ लेना। विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? ग्राम न्यायालय एक्ट कौन सी स्टेटमेंट है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर न्यायाधिकारी शैल बी अपॉइंटेड बाय द ग्राम पंचायत with consultation with state government. As per the act, Gram Nyayalaya can hear only civil cases and not criminal cases. The act allows local social activities at mediators and reconciliators. The answer would be A. 1 and 2 is not correct. ये गलत है और ये भी गलत है। Which following guarantee independence of Supreme Court? कौन सा प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी की गारंटी देता है? Appoint its own staff, ban on practice after retirement, conduct of judges cannot be discussed in parliament. तो
कौन से फीचर हैं जो सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं? द आंसर वुड बी यस डी, ऑल द फीचर्स प्रोवाइड और गारंटीज द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are true? Supreme Court can review its own judgments. Yes. Scope of judicial review in USA is broader than that in India. Answer would be C. Both the statements are correct. Yes, Supreme Court can review its own judgment. और जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है यूएसए में ज़्यादा ब्रॉडर है, इंडिया अभी एवोल्यूशन स्टेज में ही चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी मूव टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ फेडरलिज्म. Which of the following federal principles are not found in Indian Federation? कौन से प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, नॉट फाउंड? तो रीड दिस, आंसर वुड बी कौन कौन से हैं? सी, यस, 1 and 2. बाइफर्केशन ऑफ जुडिशरी बिटवीन फेडरल, जी नहीं, जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है, अलग अलग जुडिशरी नहीं है. इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन अपर हाउस, जी नहीं, अपर हाउस है जो वो इक्वालिटी नहीं दे रखी स्टेट्स को, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को बाइफरकेट किया गया है. तो ये दो फीचर्स हमारे इंडियन फेडरेशन में नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन करेक्टर बिकॉज, फेडरल फीचर्स क्या हैं अब इसमें से, कि जो हेड ऑफ द स्टेट है इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेंट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज. गवर्नर ऑफ स्टेट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये क्या फेडरल फीचर है? जी नहीं. There is distribution of power between union and state. Yes. So this is the federal feature. The answer would be C. Next question. Which schedule of the Constitution of India contains the 3 lists that divide powers? तो कौन से शेड्यूल में जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, कौन सी लिस्ट में है, शेड्यूल में है? यस, आंसर इज 7th, C. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट? अब इसमें से यूनियन लिस्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? गेस द आंसर. तो द आंसर इज यस डी, सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये यूनियन लिस्ट का ही पार्ट है. फॉरेन अफेयर्स ऑफ कोर्स, टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, टैक्सेस ऑन सर्विसेज और मेजर पोर्ट्स, सारे ही यूनियन लिस्ट का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट? अब कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? जिसमें स्टेट का भी थोड़ा बहुत रोल होता है और यूनियन का भी, दोनों मिलके इस पे लॉ बना सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज, वेट्स एंड मेजर, ट्रेड यूनियन, कौन से हैं? आंसर वुड बी सी. वेट एंड मेजर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के सारे के सारे कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन कैन पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट? कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है? व्हेन स्टेट मेक रिक्वेस्ट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी, इन केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन. सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. इन तीनों ही इंसिडेंट्स में पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट. दिस इज द डिटेल सोल्यूशन, यू कैन रीड फ्रॉम PDF जो टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या बायो में या कमेंट में मैं डाल दूंगा. और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. द चैनल इज़ भारती UPSC. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. कोई भी डाउट्स हैं, इंक्वायरी आप मेरे को DM कर सकते हो या कमेंट में भी डाल सकते हो. सो वी मूव नेक्स्ट टू चैप्टर नंबर 8, लोकल गवर्नमेंट. क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सेटअप इन इंडिया? सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ सेटअप हुई थी? ये हुई थी जी मद्रास में. कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1699. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ चेक दिस एंड कमेंट बिलो कि मद्रास में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सी ईयर में बनी थी? ये ब्रिटिशर्स के टाइम में बनी थी. आंसर इन कमेंट बॉक्स कि कौन सी ईयर में बनी थी. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पंचायती राज was constitutionalized through 73rd constitutional amendment. Yes. Tamil Nadu was the first state to establish Panchayati Raj. Tamil Nadu opted 3-tier system while Rajasthan opted 2-tier system. तो क्या इसमें करेक्ट है? तो करेक्ट आंसर वुड बी, तमिलनाडु तो पहली स्टेट नहीं थी तो यहाँ से 12 एलिमिनेट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव भी एलिमिनेट हो जाएगा. तो राइट आंसर वुड बी ओनली A. यस, राजस्थान was the first state to establish Panchayati Raj at started from Nagaur district on 2nd October 1959. It's a very important fact for your exam point of view.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी इंक्लूड्स, कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी इनमें से? द थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय टू टीयर सिस्टम, द स्टेट शुड नॉट सुपरसीड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और नंबर 3, सीट्स फॉर SC and ST शुड बी रिजर्व्ड पॉपुलेशन के बेसिस पे। कौन सी करेक्ट है? डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये सारी की सारी ही रिकमेंडेशन थी अशोक मेहता कमेटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्बन लोकल गवर्नेंस इज डेल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है लोकल गवर्नेंस? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, होम अफेयर्स या डिफेंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यस, ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज इंक्लूड होती हैं हमारी गवर्नेंस के लिए, अर्बन अफेयर्स की। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, होम अफेयर्स, म्यूनिसिपल बॉडीज ऑफ यूटीज़, सारी की यूटीज़ की जो गवर्नेंस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, आपने सुना होगा, अम्बाला कैंट हो गया, दिल्ली कैंट हो गया, बठिंडा, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा? नोट, it is a body consisting of persons enlisted in the electoral rolls. It is a village assembly consisting of all the registered voters in the area of panchayat. Its power have been determined by central government. So I think this looks shady statement because जो local government है, it is a state subject. तो answer would be C. Yes, local government is a state subject. Central government has no business in determining the features of local governance. Next question. Who among the following is hailed as a father of local government in India? This is the question of modern history also. Answer would be Lord Ripon. Yes, Lord Ripon is known as granted the Indians first taste of freedom of introducing the local self-government in 1882. Next question. What was the main purpose behind bringing Panchayati Raj system? क्या था main purpose? ताकि to prevent criminalization of politics, development of villages, decentralization of political power to general peoples, या to reduce election expenses? तो right answer would be yes, answer would be C, decentralization of power के लिए। Next we move to chapter number 9 and 10, the last chapters of 11th NCERT, philosophy of constitution. Question number 1. In late 90s, efforts were made to review the entire constitution. Consider the following statement in this regard. लेट 1990s में एक कमीशन बनी ताकि देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अब तक क्या प्रोग्रेस करी है और क्या रिकमेंडेशन की नीड है। सो इन 2000 अ कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस वेंकटचलैया। द कमीशन स्टक टू द थ्योरी of the basic structure and did not suggest any measure that would endanger the basic structure of the constitution. Answer would be yes, C. Both the statements, sorry, here, yes, C. Both the statements are correct. You can read from here in PDF. If there are 540 members in Lok Sabha, 5 members are absent, 50 do not participate in the voting, and how many members will be required to pass a bill from effective majority? 545 members हैं, 5 एबसेंट हो गए, 50 आए नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करा, तो 490 रह गए। तो हाउ मैनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड नाउ? द आंसर वुड बी डी, यस, 245। एट लीस्ट 50% ऑफ द मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। 490 डिवाइडेड बाई 245। Effective majority of the house means more than 50% of the effective strength of the house. This implies that out of the total strength we deduct the vacant seats when the Indian constitution mention all the then members that refer to the effective majority. Next question. So we have to match कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से ली है। जैपनीज से क्या लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया है, ब्रिटिश से क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है। तो द रूल ऑफ लॉ हमने पहले पढ़ा, कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स कहाँ से ली है, तो आंसर वुड बी डी।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया है, नॉमिनेशन जो राज्यसभा की मेंबर की होती है वो हमने, इफ यू सी हियर J3 K2 J3 and K2 in L1। साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने, इलेक्शन राज्यसभा के साउथ अफ्रीका है, जो राज्यसभा में नॉमिनेशन का प्रोसीजर है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट रेफर्स टू द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इवन द पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती जजमेंट। तो वेरी easy question and important one. Right answer would be one only. one कैसे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट काटना है इसमें से, ठीक है काट देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, 10 पेज रह गए। So next question, consider the following statement regarding the federal system in India. The Indian federal system is based on Canadian model more than American model. The Indian Federation is referred to as a union because it is a indestructible. तो कौन सी statement इसमें correct है? Answer would be yes, see both the statements are correct. Canadian model of जो federation है वो उसे हम ज़्यादा resonate करते हैं। So this is the explanation you can read from PDF. Which statement is not correct in the case of sovereign India? कौन सी correct नहीं है statement? India is not dependent on any country. India is not a colony of any other country. India can give any part of its country to any other country. And India is obliged to obey the UN in its internal affairs. तो ये जो statement है ये sovereignty इंडिया की नहीं define कर रही। internal matters में UN का कोई रोल नहीं है। sovereignty का मतलब ही यही है कि India as a country is independent to manage its own affairs. You can read the explanation from here in PDF. Next move, the language of preamble of Indian Constitution is taken from the Constitution of. The language means किस तरह की लैंग्वेज, यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट की है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। द आंसर वुड बी यस, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया कैन टेक प्लेस। कितने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। यस, इन 3 ways. You can read from here, simple majority, special majority of parliament and special majority of parliament plus the consent of state. So these are the 3 ways. Next and last question is, consider the following statement regarding the amendment procedure of the constitution. The amendment bill can only be introduced by a minister. This looks shady. The president can return the amendment bill for reconsideration of parliament but cannot withhold his assent to it. Introduction of parliament bill can only be done with prior permission of president. तो which statements are correct? None of the above statements are correct. सारी की सारी गलत है। सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं, कोई इंडिपेंडेंट MP भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द अमेंडमेंट बिल नहीं, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल जब पास होके पार्लियामेंट से आएगा तो प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन दैट बिल, और जो अमेंडमेंट बिल पेश करना है पार्लियामेंट में उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जबकि मनी बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत है। सो हियर वी एंड आवर टुडेज डिस्कशन ऑफ इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम पॉलिटी NCERT।